بلیٹن کے آغاز میں کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب میں کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان اور ڈی جی خان میں 5، بہاولپور میں 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رحیم یار خان 2، خانیبال، بہاول نگر، بہاڑی، لیا میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے جنوبی پنجاب میں کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان اور ڈی جی خان میں 5، بہاولپور میں 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رحیم یار خان 2، خانیبال، بہاول نگر، بہاڑی اور لیا میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں مسائل کی وجہ روحی نے کھوج نکال لی۔ بڑے سرکاری اسپتال کئی ماہ سے مستقل سربراہان سے محروم ہیں۔ نشتر اسپتال، چلڈرن کمپلیکس، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سر فہرست، نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری اور نشتر میڈیکل کالج بھی لسٹ میں شامل ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں مسائل کی وجہ روحی نے کھوج نکال لی۔ بڑے سرکاری اسپتال کئی ماہ سے مستقل سربراہان سے محروم ہے۔ نشتر اسپتال، چلڈرن کمپلیکس، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سر فہرست ہے۔ نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری اور نشتر میڈیکل کالج بھی لسٹ میں شامل ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بلال نیازی سے۔ جی بلال، بتائے گا کون سے اسپتال سربراہان سے محروم ہے؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ صحت کے میدان پر کافی زیادہ فوکس کیا جائے، لیکن ملتان جنوبی پنجاب کی بات کریں اور اسپیشلی جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کی بات کریں تو ادویات کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی امور ہیں ان کو چلانے کے لیے افسران ہی کم پڑ گئے ہیں۔ ملتان میں اگر بات کریں تو ملتان کے جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہاں پر انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے ایم ایس اور اس کے علاوہ جو سربراہان ہیں ان کی تعیناتی نہیں کی جا سکی۔ اضافی عہدوں پر ہاسپٹلز کو چلایا جا رہا ہے۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بات کریں، چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بات کریں تو وہاں پر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ گزشتہ 3 ماہ سے خالی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف کے پاس یہ چارج تھا، وائس چانسلر بننے کے بعد اب ان کو یہ اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے ابھی تک اس پر مستقل تعیناتی نہیں کی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ملتان نشتر ہاسپٹل کی بات کریں تو ڈاکٹر امجد چانڈیو کو اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تاحال مستقل ایم ایس تعینات نہیں کیا جا سکا۔ چلڈرن ہاسپٹل کے اگر حالات کی بات کریں تو کافی زیادہ سنگین نظر آتے ہیں۔ میڈیسن کے معاملات بھی کافی زیادہ وہاں پر ڈسٹرب ہیں اور وہاں بھی ایم ایس کی تعیناتی نہیں کی جا سکی۔ گزشتہ 5 سے 6 ماہ ہو چکے ہیں ڈاکٹر احسن کو اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن تاحال اس حوالے سے مستقل ایم ایس کا چارج کسی کو نہیں دیا جا سکا۔ اس حوالے سے طبی حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انتظامی امور پر جو تعیناتی ہے وہ مستقل۔ بلال، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھ تو آپ کو بتائیں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال انتظامیہ کی نااہلی کا کمال، سی ٹی اسکین مشین 2 ماہ سے خراب ہے۔ عوام سراپا سوال، مریض اور لواحقین مہنگے داموں باہر سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہے۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے بہاولپور وکٹوریہ اسپتال انتظامیہ کی نااہلی کا کمال، سی ٹی اسکین مشین 2 ماہ سے خراب، عوام سراپا سوال، مریض اور لواحقین مہنگے داموں باہر سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود، بتائے گا مریضوں کا اس پر کیا کہنا ہے؟ موجود ہوں بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے ریڈیالوجی وارڈ میں، جہاں پر سی ٹی اسکین مشین آؤٹ آف آرڈر ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے، 2 ماہ سے تقریباً خراب ہے، جس کے باعث شہریوں کو اور مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے جانتے ہیں آؤٹ آف آرڈر ہوئی ہے سی ٹی اسکین مشین، کیا کہیں؟ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میری مدر یہاں ایڈمٹ رہی ہے ہاسپٹل میں، تو ان کی ایم آر آئی مشین جو ہے وہ بہت دفعہ آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی تھی، تو ہمیں بار بار آنا پڑتا تھا کہ آپ نمبر لے لیں، پھر دوبارہ آئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پروسیجر ڈیلے ہوتا ہے۔ سی ٹی اسکین مشین بھی خراب ہے 2 ماہ؟ سی ٹی اسکین مشین خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے نا، دیکھیں پیشنٹس یہاں لائن میں لگے، ایک پیشنٹ جیسے فار ایگزامپل میری مدر کی سرجری ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی ہے، تو جب یہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور کووڈ کی سچویشن ہے تو بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں انجیکشن بھی پہلے کنٹراسٹ سی ٹی اسکین کے لیے ملتے تھے، کیا انجیکشن آپ باہر سے لائے ہیں یا یہیں؟ یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں ملتا تھا۔ آپ لوگ لائے ہیں؟
हाँ अब तो लाए, अब लास्ट सिटी स्कैन में भी लाए थे और अब भी लाए हैं। भी लाए हैं, और भी लोग यहाँ पर लाइनों में बैठे हुए हैं। आपका भी सिटी स्कैन है? हमने खड़े हो हमारे साथ जी। हम भी इंजेक्शन खुद खरीद कर लाए हैं। कितने दिनों के बाद टाइम मिला सिटी स्कैन का? हमको 5 दिन हो गए इधर आए हुए। 5 दिन से आपको सिटी स्कैन नहीं हो रहा है? जी जी। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कह रहे हैं अभी टाइम नंबर लगा हुआ है, अभी बैठे हैं, 11 बजे का आया, 11 बजे से टाइम ऊपर हो गया है। आप रश देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये आलम है रश का। लोगों ओवर बर्डन हुआ है क्योंकि 2 मशीनें हैं, एक मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, दूसरी चल रही है, दूसरी मशीन जो चल रही है उसके बायस यहाँ पर बहुत ज्यादा रश का सामना है। एक साथी और हमारे साथ मौजूद है। आउट ऑफ ऑर्डर हुई है सिटी स्कैन मशीन, दूसरी पे करवा रहे हैं? मैं अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ। ये सरकारी मुलाजिम इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आवाम के मसाइल आप देख रहे हैं। आवाम इस वक्त यहाँ पर ओवर बर्डन खड़े हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। इस वक्त हम आपको निशानदेही कर रहे हैं। आउट ऑफ ऑर्डर हुई है सिटी स्कैन मशीन और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जी, मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का कमाल, सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, अवाम सरापा सवाल। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का कमाल, सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, अवाम सरापे सवाल है। मरीज और लवाहिकीन बाहर से टेस्ट महंगे दामों करवाने पर मजबूर है। आपको बताते चलें इस हवाले से बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का कमाल, सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, अवाम सरापे सवाल है। मरीज और लवाहिकीन बाहर से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर है। हमें ज्वाइन किया है MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर सैयद तनवीर शाह ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा सिटी स्कैन मशीन क्यों ठीक नहीं करवाई जा रही? मैडम आपने मेरा मौक़िफ़ लिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे आपके जो अल्फाज है नाअहली वाले से मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि एक मशीन है, उसने अपनी उम्र पूरी करनी है। वो पूरी करने के बाद उसका डेफिनेटली हर चीज़ की एक उम्र है। वो मशीन है, उसकी जो फंक्शनल लाइफ है वो पूरी हो चुकी है। कंपनी से हमारी डील हो गई है, वो कंपनी उसको रिप्लेस करके दे रही है। उसमें कुछ थोड़े से हमें बजट के वजह से कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन हमारी 2 मशीन फंक्शनल है। एक हमारे तनवीर साहब आप कह रहे हैं ये नाअहली है, अस्पताल इंतजामिया की नाअहली है, मरीजों को मुश्किलात का सामना है, 2 माह से मशीन खराब है, अभी तक ठीक नहीं करवाई गई। जी, वो मशीन अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है और रिप्लेस होगी, वो रिप्लेस होनी है। सर ये भी बताएं ना, इसको ठीक कैसे करवाया जाएगा, मरीजों की मुश्किलात कैसे कम होगी, कब तक ठीक करवाया जाएगा मशीन को? जी अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मशीन रिप्लेस होनी है, वो अपनी फंक्शनल लाइफ पूरी कर चुकी है। ठीक, उसकी जगह कंपनी से बात हो रही है, कंपनी उसकी जगह ऑल्टरनेट मशीन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और इस वक्त 2 मशीनें काम कर रही हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में, एक मेन कॉम्प्लेक्स में, एक शोभा हादसात के अंदर। वो मरीजों को सहूलियात हम पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सर अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे वहां पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है, महंगे दामों टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सहूलियात फराहम की जा रही हैं? जी मैडम, जो हकीकत है, जो चीज है, मैं आपको वही बयान कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताएं कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का कमाल, सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, अवाम सरापा सवाल है। मरीज और लवाहिकीन बाहर से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। आपको बताते चले इस हवाले से बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का कमाल, सिटी स्कैन मशीन 2 माह से खराब है, अवाम सरापा सवाल। मरीज और लवाहिकीन बाहर से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गैर हाजिर पर MO इमरान मजारी को मुअत्तल कर दिया गया। अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई का मुआयना भी किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गैर हाजिर पर MO इमरान मजारी को मुअत्तल कर दिया गया। अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई का मुआयना भी किया गया। आपको बताते चले इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गैर हाजिर पर MO इमरान मजारी को मुअत्तल कर दिया गया। अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई का मुआयना भी किया गया।
आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा ड्यूटी से गैर हाजिर पर एमओ इमरान मजारी मुअत्तल कर दिए गए। अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई का मुआयना भी किया गया। सरकारी खजाने का बेदरग इस्तेमाल यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सरकारी खजाने को हल्का करेगी। हुकूमत हेल्थ कार्ड की प्रिंटिंग के लिए 70 करोड़ का ठेका देगी। सेहत कार्ड की प्रिंटिंग का ठेका देने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई। सेहत कार्ड की प्रिंटिंग पर 70 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। प्रिंटिंग के लिए ख्वाहिशमंद फर्म से बिड मांगी जाएगी। कम लागत में प्रिंटिंग करने वाली फर्म को ठेका दिया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सरकारी खजाने को हल्का करेगी। हुकूमत हेल्थ कार्ड की प्रिंटिंग के लिए 70 करोड़ का ठेका देगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। 3 डिवीजन में यानी 11 अजला में इस पर काम शुरू है। अब इसके कार्ड की जो तकसीम है उसके लिए प्रिंटिंग की जानी है और प्रिंटिंग पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 70 करोड़ रुपए का ठेका वो दिया जाएगा। इस पर हमसे बाकायदा बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये जो ठेका है प्रिंटिंग के हवाले से ये जो क्वालिफाई कन्फर्म होंगी सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा और इसकी पेपर रूल्स के मुताबिक ही कवानीन को मद्देनजर रखते हुए जो ख्वाहिशमंद कंपनियां होंगी या फर्में होंगी वो अपनी बिड पंजाब हुकूमत को देगी, यानी कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को देगी और उसके बाद इसका ठेका दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर अब मुख्तलिफ जो मराहल फंड तय करने के हवाले से वो भी क्योंकि अप्रूवल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी जा चुकी है। अब इसमें जो प्रिंटिंग के हवाले से जो ठेका है अब फैसला करना है कि लेकिन कहना तो जो कंपनी इसके लिए जो है वो बेहतर देगी उसी को ये ठेका दिया जाएगा। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नाम पर सादा लो अफराद को लूटने वाले गिरोह की गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम तोंसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं जिनसे 2008 में इस गैंग ने पैसे बटोरे, उसके बाद 2012 में उनसे पैसे लिए नौकरियों का झांसा दे के, 2017 में, 2018, 20 और 21 में। उस हवाले से हमारे पास जो है वो काफ़ी हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले हमने यामीन नामी जो फर्द है उसको गिरफ्तार किया। यामीन की निशानदेही पे हमने तमकीन शाह उसको अरेस्ट किया। इन दोनों की जब तफ्तीश की और इनकी इलेक्ट्रॉनिक और इनकी जो टेक्निकल हमने सारी एविडेंसेस कलेक्ट की तो एक मैडम कलसूम हिना जो सोकड़ा में जो हेड मिस्ट्रेस के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी उनका नाम सामने आया। मैडम को फिर हमने शामिल तफ्तीश किया। जब मैडम को हमने शामिल तफ्तीश किया और उनका हमने मोबाइल डाटा और उनका सारा जो ये 2 बंदे थे इनके साथ जो कम्युनिकेशंस हैं, मैडम की जो अलमारी जो ऑफिस है, मैडम के जो घर है, वहाँ से जो एविडेंसेस जो हमने इकट्ठी की तो पता चला कि ये 2008 से ऑपरेट कर रही हैं और इनके घर से जो है वो लैपटॉप, इनके घर से प्रिंटिंग डिवाइसेस, इनके घर से जेली मोरें, जेली ऑर्डर्स जो भी हम आपको दिखाएंगे वो बरामद हुई। तरीका वारदात इनका बड़ा सादा था। मैडम ने आगे जो है वो बंदे रखे हुए थे जो सरेआम लोगों से को मुनादी कराते थे कि जिसको नौकरी चाहिए हमारे ऊपर तक ताल्लुकात हैं। और चूंकि अब तो सोने पे सुहागा, चूंकि आपको पता है चीफ मिनिस्टर भी तोंसा तहसील से हैं, तो खुल के इन्होंने नाम इस्तेमाल किया चीफ मिनिस्टर और उनके करीबी साथियों का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों को उनके कीमती ज़र से महरूम किया, लोगों को फेक ऑर्डर्स दिए, जेली चेक दिए, बैंक के जेली जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिए। वो सारी चीज़ें हमने रिकवर की हैं और सो फार जो है वो इस हवाले से हमने जो इनसे चीज़ें रिकवर की हैं वो उसमें फेक ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसमें जो है कुछ हमने रकम भी उसमें हमने रिकवर की है जो इंशाल्लाह ताला हम जो हकदार हैं उनके हवाले करेंगे। अब तक जो है जो पुलिस को जो 100 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कुछ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2008 से लेके अब तक ये 12-13 सालों में ये लोगों से फ्रॉड करते रहे हैं। जो एप्लीकेशंस हैं उन पे हमने 4 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं। बाकी भी हम जो वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारे पास इस वक्त वेरीफिकेशन का प्रोसेस भी जारी है और वेरीफिकेशन हम इंशाल्लाह ताला जो मैडम की अपनी हैंड राइटिंग है और मैडम के अपने जो ऑर्डर्स है
उनको देखते हुए हम वेरीफाई करेंगे ताकि जेन्युइन जो है वो दरखास्त बंदा और दूसरों को हम सेपरेट कर सकें। अब तक 3 अफराद गिरफ्तार हैं, लेकिन ये तफ्तीश बड़ी ओपन एंडेड है। इसमें बैकग्राउंड में हमने 30 से ज़ायद लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं और वो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं। उससे अभी हम 3 अफराद को हमने अरेस्ट किया और मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। हम इसको तफ्तीश के दायरेकार को मज़ीद इसको हम वसी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जिस इन्होंने पैसे लूटे हैं हम हकदार तक उनके पैसे पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने कोई सवाल करना है तो 2008 से ये मैडम ऑपरेट कर रही जी। है। तो अभी बुज़ाहब का जो है उन्होंने बुज़ाहब साहब के नाम पे भी ऑपरेट करना शुरू किया और अभी तो उनकी एक रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई, उसमें उन्होंने बुज़ाहब साहब के जो करीबी साथियों के नाम जो हैं उन्होंने खुल के वो लिए हैं। तो क्या ये अपना जो क्या धरा है वो उन पर डालने की साजिश है या वो लोग बाकी इस पर मुलविस हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि हमारे पास बड़ा प्लिथोरा ऑफ एविडेंस है हमारे पास। जब इन्होंने शुरू में जो करीबी साथियों के नाम इन्होंने लिए थे तो हमने उन करीबी साथियों को भी शामिल तफ्तीश किया है। मैडम के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो बड़े ही जो है वो हैरान कुन है। ये मैडम की अपनी हैंड राइटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पैसे रिसीविंग और पैसे वसूली के तमाम को अपने सिग्नेचर्स के साथ बताया हुआ है कि मैंने इतने पैसे वसूल कर लिए हैं, इतने पैसे मैंने देने हैं, इतने पैसे तमकीन शाह से आ गए हैं और इतने पैसे यामीन से आ गए हैं। इसी तरह ये फेक ऑर्डर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैडम अपने घर में बैठ के फेक ऑर्डर्स तैयार करती थी। ये जॉब एप्लीकेशंस हैं जो मैडम के घर से मिली हैं हमें। इसी तरह ये फेक रसीट्स हैं हमारे पास। ये सारी सर्विस बुक्स हैं जो मैडम ने घर में बैठ के तैयार की हुई हैं और आपको पता है कि ये सर्विस बुक्स जो है वो खाली सर्विस बुक्स तो मिल जाती हैं। तो इसमें हैंड राइटिंग भी मैडम की है जो इंशाल्लाह ताला हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को फोरेंसिक्स इस काम करवाएंगे। अब तक की जो तफ्तीश है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि 2008 से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। तो 2008 में तो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो ना MP थे ना MNA थे और ना ही उनकी फैमिली जो है वो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थी। तो उस हवाले से जो है ये अब इनको एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि अब हम क्यों ना चीफ मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल करें और लोगों को इस तरह पैसे लूटें लोगों से और उनको फेक जो है वो हम देंगे। और अगर कोई बंदा इनको अप्रोच कर लेता था कोई मुख्तलिफ तरीके से तो ये लोगों के इन्होंने पैसे वापस भी किए हैं। और जो किसी को इन्होंने जेली ऑर्डर दे के डरखा दिया, किसी को जेली चेक दे के डरखा दिया, तो इस हवाले से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इसमें मजीद जो गिरफ्तारियां इंशाल्लाह ताला वो भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नाम पर 17 अफराद को लूटने वाले गिरोह की गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम तोनसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक अनार कई बीमार में मुल्तान की सीट के लिए नून लीग दड़े बंदी का शिकार होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साग खुर्शीद कांजू बोल पड़े, कहा कि बड़ी और जमहूरी जमातों में दड़े बंदी होती है। मजीद अफराद मेयर का उम्मीदवार बनने के लिए सामने आएंगे। टिकट किसको मिलेगा फैसला पार्टी क़यादत ही करेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद बताइएगा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो पार्टी के अंदर जो है 9 धड़े जहां पर मौजूद है मेयर मुल्तान के इलेक्शन लड़ने के लिए। वहीं पर पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मजीद उम्मीदवार भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस वक्त डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद कांजू मरसा मौजूद से बात करेंगे। जुनैद भाई, जमहूरी निज़ाम के अंदर हर शख्स को ये इजाज़त होती है कि वो अपनी पार्टी के अंदर अपनी अगर लड़ना चाहे तो वो लड़ सके और अपने आप को सामने ला सके, लेकिन एज अ होल पार्टी के अंदर कोई तकसीम नहीं है। और आप देखेंगे कि इस दफ़ा पार्टी बहुत सीरियसली मुल्तान को लेकर फैसले करेगी और वो ये चाहते ही हैं कि हम मुल्तान के अंदर इंशाअल्लाह अपनी जो हमारे शहर हमारा था हम इसको वापस जो है वो हासिल करें। इसीलिए नून लीग की जो टिकट होगी वो आप देखेंगे कि सबसे अहम टिकट होगी और लोग हमारी पार्टी के अलावा भी राब्ते कर रहे हैं जो इस वक्त हमारी पार्टी के अंदर आकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन पार्टी इस वक्त जो भी फैसला करेगी सब लोग मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे और एक बार हम इंशाअल्लाह इस शहर को दोबारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाकर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद कांजू का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो अहमियत इख्तियार करेगा बल्दियाती इलेक्शन में और मेयर मुल्तान के इंतखाब के अंदर। साथ साथ उनका कहना था कि पार्टी की क़यादत जो है वो हतमी फैसला करेगा। जमहूरी अमल है, ग्रुप्स जरूर हैं, मगर मेयर मुल्तान का जब नाम फाइनल होगा तो तमाम जमहूरी अमल शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए यूटिलिटी स्टोर रिलीफ की बजाय बन के तकलीफ। सनावा के यूटिलिटी स्टोर से अशिया
पुरनोश गायब हो गई। आटा, घी और चीनी न होने की वजह से शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ताहिर चौधरी से। जी ताहिर, बताइएगा। मैं सिनेमा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है, ना तो आटा है और ना ही घी है, और चीनी की भी बहुत कम मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से जिन अशिया खुर्द-नोश पर रिलीफ दिया गया था वो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ही नहीं है। आटा मौजूद नहीं है, घी भी मौजूद नहीं है, और शहरी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? सर जी 7 से 8 दिन हो गए हैं, डेली चक्कर लगाते हैं। ना आटा मिलता है ना घी मिलता है, हम कहाँ जाएं? अगर बाजार से लेते हैं वो तो इतना महंगा पड़ता है, 350-400 रुपए किलो मिलता है, वो हम ले सकते हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, आपने जो वादे किए थे वो वादे वफा क्यों नहीं हो रहे? हमें क्यों रुला रहे हो आप? मेहरबानी करें आप, ये जो है ना स्टोर की जो पॉलिसी आपने बनाई है ये पूरी करें। ये माल भेजें, आप घी भी भेजें, आटा भी भेजें, और ज़रूरियात ज़िंदगी का और सामान जो मिल रहा है वो भी दे, रिलीफ दें। आप वादे तो करते हैं लेकिन वादे वफा नहीं करते आप। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ की चीज़ें हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त में 94% इजाफा हुआ। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त 27,331 यूनिट रिकॉर्ड की गई। दिसंबर 2020 में 13,956 कारें फरोख्त हुई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा इस हवाले से। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। ये ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर 2021 में कारों की फरोख्त में 96% का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, और दिसंबर में जो कारों की फरोख्त 27,331 यूनिट फरोख्त हुए हैं। और जो दिसंबर 2020 की बात करें तो 13,956 कारें फरोख्त हुई थी। यहाँ अगर देखा जाए गाड़ियों की कीमत भी बढ़ी हुई है, और साथ में मिनी बजट के जरिए तजवीज़ करदा जो रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा है उसकी वजह से इससे पहले जो है गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। एक माह में सबसे ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई हैं, और साथ ही देखा जाए नवंबर के मुकाबले दिसंबर में सुजुकी की फरोख्त में 82% की इजाफा हुआ है, और होंडा की कारों की 56% इजाफा हुआ है। साथ ही मोटरसाइकिलों की बात करें तो मोटरसाइकिलों की फरोख्त में जो है नवंबर के मुकाबले दिसंबर में जो है 10% की कमी हुई है। उसका इम्पैक्ट ये है कि मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से मोटरसाइकिल की जो फरोख्त है उसमें कमी देखी गई है एक माह में। और साथ ही अगर हम देखें ट्रक और बसों की भी फरोख्त में कमी हुई है, उसकी वजह ये है कि ट्रक और बसों की भी कीमत जो बढ़ गई है, उसकी वजह से जो नए ट्रक और बसों की फरोख्त में भी कमी देखी गई है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होना था। इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। आपको बताते चले इस हवाले से बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होना था। इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। कॉलेज प्रोफेसर्स के ग्रेड 20 में तरक्कियों के लिए प्रमोशन कोर्स का शेड्यूल फाइनल कर दिया गया। असातिज़ा का 17 जनवरी से प्रमोशन कोर्स का आगाज होगा। 105 एसोसिएट प्रोफेसर्स की शमूलियत होगी। तरक्कियों के अहल 100 कॉलेज लेक्चरर्स भी शामिल होंगे। TPI कॉलेज पंजाब ने असातिज़ा को मरासला जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कॉलेज प्रोफेसर्स की ग्रेड 20 में तरक्कियों के लिए प्रमोशन कोर्स का शेड्यूल फाइनल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, बताएगा शेड्यूल फाइनल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब ने ये शर्त आयद कर रखी है कि सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा की अगले ग्रेड्स में उस वक्त तक तरक्की नहीं होगी जब तक ये प्रमोशन कोर्स में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। इस ज़मन में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने कॉलेजों के असातिज़ा की ग्रेड 20 में तरक्कियों के लिए प्रमोशन कोर्स का शेड्यूल फाइनल किया है। 4 हफ्तों पर मुहित ये प्रमोशन कोर्स 17 जनवरी से शुरू होगा, जिसके लिए इन कॉलेजों के असातिज़ा को आगाह कर दिया गया है। 105 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जिन्हें खुद प्रोफेसर के ओहदे पर ग्रेड 20 में तरक्कियां दी जाएंगी, और प्रमोशन कोर्स में शिरकत करने वाले असातिज़ा ही तरक्कियों के लिए
اہم تصور کیے جائیں گے اور ترقیوں کی جو حتمی منظوری ہے وہ صوبائی پروموشن بورڈ دے گا. جی ٹھیک ہے اکمل، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے خوشخبری، پنجاب حکومت کا احسن اقدام. ملازمین کے بچوں کو سالانہ 14,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 22 مارچ مقرر کر دی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے الشبا آصف سے. جی الشبا، بتائیے گا. گورنمنٹ ملازمین کے بچوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ ان کو تعلیمی وظیفہ دیا جا رہا ہے. میٹرک کرنے والے بچے جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں 22 مارچ تک. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن آفیسر موجود ہیں شاہد اقبال. ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کیا پروسیجر ہے اپلائی کرنے کا اور کتنا وظیفہ بچوں کو دیا جائے گا. جی سر. جی، سرکاری ملازمین ہیں جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے، ان کے جو بچے ہیں، بے شک وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو یا گورنمنٹ میں پڑھتا ہو، کم سے کم تعلیم جس بچے کی میٹرک ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے سالانہ اسکالرشپ رکھا ہوا ہے تعلیمی وظیفہ. وہ 22 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. وہ ڈپٹی آفس میں، ڈی او آفس میں اپنے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جہاں ہے وہ درخواستیں جمع کروا دیں. اس کے بعد گورنمنٹ ان کو وہ تعلیمی وظیفہ فارم کے چیک جاری کر دے گی. جی بالکل، 22 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے. تمام جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہوں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہوں، میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اپنے فارمز جو ہیں متعلقہ آفس میں جمع کروا سکتے ہیں. 22 مارچ کو تک یہ بہت شکریہ سے آگاہ کرنے کے لیے. پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے بری خبر ہے. پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا. محکمہ ایس این جی اے ڈی نے سمری وزیراعلیٰ کو ارشاد کر دی. ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار پی ایم ایس کا امتحان دیں گے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے رولز میں ترامیم کی جائیں گی. اسی پر مزید بات کریں گے کیسر کھوکھر سے. جی کیسر، بتائے گا کیا ترامیم کی جائیں گی؟ جی، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پی ایم ایس کا امتحان ہوتا تھا، وہ پی ایم ایس کے امتحان میں ہزاروں لوگ جو ہے نا، کوئی 20، 25 یا 30 لوگ اپیئر ہو جاتے تھے جن کی مارکنگ پیپر کا مسئلہ بن جاتا تھا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا اور جو اسکریننگ ٹیسٹ امیدوار پاس کرے گا صرف وہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکے گا، دوسرے پی ایم ایس کا امتحان نہیں دے سکیں گے. اس حوالے سے رولز میں تبدیلی کی سمری جو ہے وہ محکمہ لا میں پہنچ چکی ہے. یہ سمری پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ارسال کی ہے اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے رولز کو جو امینڈ کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے کیسر، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. رحیم یار خان کے جناح ہال میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور فلاحی تنظیم ریڈز پاکستان کے زیر اہتمام بچوں کے اندراج کے حوالے سے آگاہی مہم کا سیمینار کا اہتمام کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے. جی عامر، بتائے گا. جناح ہال میں سوشل ویلفیئر ضلعی انتظامیہ اور فلاحی تنظیم ریڈ پاکستان کے زیر اہتمام بچوں کے یونین کونسلز میں اندراج، ان کے سرٹیفکیٹ کرانے کے حوالے سے جو ہے آگاہی سیمینار کا انعقاد کرایا گیا، جس میں ڈرامائی انداز میں عوام کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح اس کے فوائد اور نقصانات ہیں. فلاحی تنظیم کی رہنما ہے مجاہد سلیم. سر، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے عوام میں اویئرنیس دی جا رہی ہے اور اندراج نہ ہونے کی کیا نقصانات ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ شکریہ جی. مجاہد سلیم، آرگنائزیشن ریڈ پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا ایک بہت اچھا قدم ہے کہ انہوں نے چائلڈ برتھ رجسٹریشن کے حوالے سے جو مہم شروع کی ہے، تھیٹرز کے ذریعے لوگوں تک یہ مہم پہنچے تاکہ ہم اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدے لے سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تھیٹر کے ذریعے آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے، لوگوں کو یہ خبر ملی ہے کہ یعنی کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں، جتنی بھی گورنمنٹس کے جو فنڈز ہیں، وہ ان لوگوں تک مہیا ہوں گے جن لوگوں کا اندراج جو ہے وہ یونین کونسل لیول کے اوپر ہو چکا ہوا ہے، اور جن لوگوں کا اندراج جو ہے وہ یونین کونسل لیول تک نہیں پہنچا ان کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ میسیج جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اندراج کروائیں یونین کونسل لیول میں اور گورنمنٹ کی تمام فیسلٹیز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں. ایک اویئرنیس دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ ہر شہری کو چاہے کہ اس اویئرنیس کو عام کرے تاکہ اس سے ہر شہری جو ہے آگاہی دی جا رہی ہے. بہت شکریہ عامر بھٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.